Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 4. In this lecture, we will study the some basic elementary signals. These signals do serve as the basic building block for different signals. First of all, we will see this in discrete time, and then we'll see these signals in continuous time. So, unit impulse. So the first elementary signal is named as unit impulse. Unit impulse is defined as that its amplitude is 1 at n is equal to 0, and it is 0 for all other values of n. This is the plot of the unit impulse. You can see that it is 1 only at n is equal to 0, and it is 0 all over all other values of n. N is the, let me remind you that n is the independent variable, and the delta of n, this is the unit impulse. This is the symbol for the unit impulse, and 1 is the amplitude when independent variable n is equal to 0. So this is the definition for unit impulse. Unit step function is defined as that its amplitude, it is represented as u of n, and is defined as it is 0 for the negative values of n, and it is 1 for the positive values of n. See the definition over here. Its amplitude is 0 for n is less than 0, and its amplitude is 1 for n is greater than or equal to 0. This is unit step function, and this is unit impulse function. These two signals will serve as the basic building block for different signal, and we will encounter these two types of signals, later on in our course. So you need to understand and to learn these two signal, their concept, their definition, their plot must be very crystal clear to you. This is unit impulse, and this is unit step function. Start from 0, 1, 2, 3, and it is 0 for n is less than 0, and it is 1 only at n is equal to 0. There is a close relationship between unit impulse and unit step function, that is the unit impulse is equal to u of n unit step function minus u of n minus 1. So this is u of n minus 1 will be delayed 1 unit. This is this will start from 1. This is 1, 2, 3. This is nothing but u of n minus 1. It is delayed 1 unit. So if you minus u of n minus 1 from u of n, only you will be left with one sample, and that sample is located at n is equal to 0. And if you have only one sample at n is equal to 0 and 0 at all or the other places, that is nothing but the unit impulse. That is why we say that unit impulse is equal to u of n minus u of n minus 1. I hope you understand what I am saying. U of n, however, u of n, the unit step function, is the
equal to the summation of the unit step. Sorry, unit step. U of n is unit step and delta of n is unit impulse. So u of n unit step function is equal to the summation of unit impulse from minus infinity to up to n. Here the instead of delta of n we are taking delta of m. So delta of n and delta of m is nothing, only the independent variable name is different. Here we are using n as the independent variable, here I have used m as the independent variable. Both are same. The we the unit impulse is just the independent name of the independent variable is changed. Here we are using independent variable n, here I have used m, so nothing different, only the independent variable name is changed, so it's not a problem. So if I need to find u of minus 2, this is delta of m, and from the definition of unit impulse we know that we have only, in unit impulse we have only one sample which is located at 0. All over other places we have 0 amplitude, only at 0 we have 1. This is the definition of unit impulse. So if I find u of minus 2, so I need to sum all the samples from minus infinity to minus 2. So if I sum all the samples from minus infinity to minus 2, what will I get? I am just summing 0 plus 0 plus 0 plus 0 and I will get u of minus t equal to 0. If I find u of minus 1, so n is equal to minus 1, so m equal to minus infinity to minus 1, so all the samples from minus infinity to minus 1 will be summed. Here I have opened this summation, delta of minus 1, delta of minus 2, delta of minus 3. So if you see here delta of minus 1, it is 0, 0, 0, 0, 0 up to infinity. You are summing all these samples and all these samples is nothing but 0, so will result in 0. But if I find u of 0, so now the interval of summation becomes this. Now 0 is also included, and at 0 our amplitude is 1, so 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1, so u of 0 is equal to 1. The interval of summation, you are summing all these samples, so all sample from minus infinity are 0, only sample at m is equal to 0 is 1, so it will result in 1. Similarly, if I find u of 1, so u of 1, so the interval of summation is from minus infinity to 1, delta of m, so it will start from delta of 1 plus delta of 0 plus delta of minus 1 plus delta of minus 2 and up to minus infinity. So you can see here that it is 0 all for all values of m except at m is equal to 0. So delta of 1 is also 0, delta of 0 is 1, and delta of minus 1 is 0, delta of minus 2 is 0. So 0 plus 0 plus, and only 1 is here, it is 1. So you can see that u of 1 is equal to 1, u of 2 is equal to 1, u of 3 is equal to 1. So
u of n is equal to 1 for n is greater than or equal to 0, and it is 0 for n is less than 0. For n is less than 0. In simple word that u of so we have find that it is the unit step function is the summation of unit impulse, or you can say we have just defined that u of n is equal to summation from minus infinity up to n of delta of m. Now change the variable of summation m to k, and k is equal to n minus m, so m will be equal to n minus k. So here in instead of m we will be writing n minus k. Similarly, this limit or for m you need to change these limit as well. So here we have changed these limits. You can see that k is equal to n minus m, so m will be equal to n minus k. So here instead of writing m we have written n minus k, and here the limits are for m you need to find for k. So k will be equal to n minus m when m is minus infinity. So n minus infinity, see over here, it will be equal to infinity. Now here m is equal to n, so k is equal to n minus n, this one. So k will be equal to 0. So limit for n minus k will be from k equal to 0 up to infinity. So if I open this summation, it will become delta of n for k equal to 0 plus delta of n minus 1 plus delta of n minus 2 plus delta of n minus 3, and so on. So you can see if I plot this delta of n, it is located at 0, delta of n minus 1 it is located at 1, delta of n minus 2 it is located at 2, delta of n minus 3 it is located at 3, delta of n minus 4 it is located at 4, and so on. So it is started from 0, 1, 2, 3 and 4. So if you see, this is nothing but u of n. This is u of n. So this was all about the unit impulse and unit step function in discrete time. Now see the continuous time unit step and unit impulse function. In continuous time, the unit step function is represented by u of t. Whenever in book you see u of t, it will be representing unit step function in continuous time, and it is defined as it is 1 for t is greater than or equal to 0, and it is 0 for t is less than 0. Here it is the plot. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने सर्किट आपका ओपन था, आपने बटन ऑन किया तो सर्किट आपका क्लोज हुआ और करंट स्टार्ट हुआ पास होना, ठीक है। तो जब आपने बटन ऑन नहीं किया था उससे पहले ये करंट सर्किट में ज़ीरो था। जैसे ही आपने करंट बटन ऑन किया, करंट
अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। लेकिन फिज़िकली ऐसे नहीं होगा, फिज़िकली करंट ज़ीरो होगा, बटन आपने ऑन किया तो वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के लिए कुछ टाइम लेगा। ऐसे इंस्टेंटेनियसली तो वो नहीं होगा ना, कुछ टाइम उसको लगेगा, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिज़िकली वो कुछ ऐसे होगा, लेकिन हम मॉडल इसको ऐसे करते हैं कि ये इंस्टेंटेनियसली मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है, ये सिग्नल जो है, ये इसकी वैल्यू 1 है टी की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, और टी की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये 0 है। तो इफ़ यू सी this signal is discontinuous at t is equal to 0. Why it is discontinuous? If you see here at t is equal to 0, it is a jump discontinuity. Discontinuity कैसे है कि ये 0 है, इसका एम्पलीट्यूड 0 है, और फिर ये एकदम से 1 हुआ within no time. Within no time its amplitude is going from 0 to 1. सो इट इज़ जंप डिसकंटिन्यूटी। आप इसका स्लोप फाइंड नहीं कर सकते, स्लोप इसका फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये विद इन नो टाइम ये 1 हुआ है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ये चूंकि डिसकंटिन्यूअस है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, u of t cannot be differentiated. So we define a new signal, और उस न्यू सिग्नल को हम नाम देते हैं u डेल्टा ऑफ t। ये है वो सिग्नल u डेल्टा ऑफ t। u डेल्टा ऑफ t क्या है? ये u ऑफ t का कंटिन्यूस वर्जन है। कैसे? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये t इज इक्वल टू 0 में 0 पे ये 1 हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड 1 हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसको कुछ टाइम लगा है 1 होने में। ये देखें, ये 0 है, ये t इक्वल टू 0 है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड 1 होने में इसको थोड़ा टाइम लगा है। ये वो टाइम है, ये डेल्टा। हम कह रहे हैं कि ये 0 से लेकर डेल्टा टाइम में ये 1 हुआ है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं u डेल्टा ऑफ t, u डेल्टा ऑफ t। तो अभी इस सिस्टम को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले हम u डेल्टा ऑफ t को डिफाइन कर लें। मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं u डेल्टा ऑफ t को। आप अगर देखें तो u ऑफ डेल्टा ऑफ t क्या है? ये 0 है, t इज़ लेस देन 0। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अगर t की वैल्यू 0 से कम है तो एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। t की वैल्यू जब डेल्टा से ज़्यादा हुई है तो ये क्या हो गया है? 1 हो गया है। 0 और डेल्टा के दरमियान ये जो इंस्टेंट है, ये आप यहाँ पे देखें, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये और ये जो ड्यूरेशन है 0 टू डेल्टा, इस ड्यूरेशन में ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये हमने डिफाइन करना है। ये तो फिर डेल्टा के बाद t इज़ ग्रेटर देन डेल्टा, उसके बाद तो ये 1 हुआ है, तो ये हमने ये डिफाइन करना है। ये देखें आपने, ठीक है। तो फॉर इंटरवल 0 to delta, t is greater than or equal to 0 and less than or equal to delta, u of delta can be mathematically defined by line equation। लाइन इक्वेशन के ज़रिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइन इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या चीज़ है, c क्या चीज़ है, ठीक है। तो m तो स्लोप है, m क्या है? m क्या है? स्लोप। ये आप देख रहे हैं स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या है? 1 है, y1 क्या है? 0 है, तो 1 माइनस 0। x2 क्या है? डेल्टा, और x1 क्या है? 0। सो डेल्टा माइनस 0, 1 और डेल्टा हुआ ये स्लोप, ठीक है।
सी क्या होता है? सी को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये वाई की वैल्यू उस इंस्टेंट पे क्या है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल ये एक्स की वैल्यू है और आपका लाइन ये है, तो एक्स जब ज़ीरो है तो ये अगर ये 3 है फॉर एग्जांपल, तो सी की वैल्यू क्या हुई 3। ये इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो ऐसे, जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो y की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो c क्या है? ये ज़ीरो हो गया। हम कह सकते हैं कि आप अगर इस इक्वेशन में अभी पुट करें, m की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 और डेल्टा, तो यहाँ u ऑफ डेल्टा, इसमें इस इक्वेशन में आप m और c की वैल्यू पुट करें, c तो ज़ीरो हो गया, m क्या हुआ? 1 और डेल्टा, तो u ऑफ डेल्टा t किसकी इक्वल हो गया? t बाई डेल्टा। और ये किस ड्यूरेशन के लिए है? ज़ीरो और डेल्टा के दरमियान जो ड्यूरेशन है उस दौरान u ऑफ डेल्टा ऑफ t की वैल्यू क्या है? t बाई डेल्टा। सो ये हमारा कंप्लीट मैथमेटिकल डिफिनीशन है ऑफ u ऑफ डेल्टा ऑफ t। 0 फॉर t इज लेस देन 0, 1 फॉर t is greater than delta, and t by delta for 0 to delta. Now we can now differentiate u of u delta of t, and u delta of t, differentiation of u of delta of t will result in delta of t। आप डिफ्रेंशिएट करें, ज़ीरो का डिफ्रेंशिएट डी बाई डी टी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, डी बाई डी टी ऑफ 1 वो भी ज़ीरो। ठीक है, आप अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन करें टी बाई डेल्टा की, डी बाई डी टी, तो 1 और डेल्टा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसके हिसाब से कांस्टेंट है, तो ये इधर आ जाएगा, टी डी टी बाई डी टी, वो उससे क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 1 और डेल्टा, तो ये 1 और डेल्टा आया। ठीक है, अच्छा अभी आप देखिए, इसको हम प्लाट कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आया हमारे पास। ये आप इसकी u ऑफ डेल्टा ऑफ t की डिफ्रेंशिएशन को हमने ये नाम दिया है डेल्टा, सब्सक्रिप्ट में डेल्टा t। ठीक है, और ये हर जगह पे ज़ीरो है, 0 टू डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या है? 1 और डेल्टा, ये 1 और डेल्टा, बाकी फिर ये ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब भी अगर इसका आप एरिया फाइंड कर लें तो देखें, हाइट इसकी क्या है? 1 और डेल्टा, और विड्थ क्या है? डेल्टा। तो एरिया कैसे फाइंड होता है? लेंथ इंटू विड्थ, डेल्टा इंटू 1 और डेल्टा, 1 आएगा ना। लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी, तो बाकी तो हर जगह पे ये ज़ीरो है। 0 टू डेल्टा इसकी वैल्यू है, 0 टू डेल्टा इसकी वैल्यू क्या है? 1 ओवर डेल्टा। सो 1 ओवर डेल्टा आप बाहर ले आए, सो 1 डी टी, 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी, और लिमिट क्या है? 0 टू डेल्टा। सो 1 ओवर डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 0, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप इफ़ यू सी दिस डेल्टा ऑफ टी, इसका एरिया हमेशा 1 आएगा, इसका एरिया क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू कम करूं, डेल्टा की वैल्यू अगर मैं कम करूं तो क्या होगा कि ये विड्थ तो कम हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। अच्छा,
अगर ये आप देखें, अगर डेल्टा की वैल्यू आप ज़ीरो को अप्रोच करें तो क्या होगा, ये विड्थ तो कम हो जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका एरिया जो है वो हमेशा 1 आएगा। सो इसको हम यूनिट इम्पल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये और यहाँ जो 1 लिखा होता है वो इसका एम्पलीट्यूड शो नहीं कर रहा, बल्कि वो इसका एरिया शो कर रहा है कि इसका एरिया हमेशा 1 आएगा। क्योंकि अगर आप ये लेंथ ये डेल्टा की वैल्यू कम कर रहे हैं तो ये 0 पे लोकेट हो जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे हमने एक सिग्नल डिफाइन किया था u डेल्टा ऑफ t, ये जो है u डेल्टा ऑफ t, तो अगर ये डेल्टा की वैल्यू में 0 को अप्रोच करूँ तो ये u डेल्टा ऑफ t से क्या बनेगा, u ऑफ t बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये डेल्टा सबस्क्रिप्ट डेल्टा इंटू टी, इसमें ये डेल्टा की वैल्यू 0 को अप्रोच करे तो इससे क्या बनेगा, इससे भी डेल्टा ऑफ टी बन जाएगा। और डेल्टा ऑफ टी क्या होगा, वो ये चीज़ है। इसको हम नाम देते हैं यूनिट इम्पल्स। इसको क्या कहते हैं, यूनिट इम्पल्स, कंटिन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट इम्पल्स क्या है, ये t इज इक्वल टू 0 पे 1 देता है और बाकी हर जगह पे ये 0 है, लेकिन ये 1 जो है ये इसका एरिया है, इसका एम्पलीट्यूड नहीं है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे देखें, डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ टी। अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो u ऑफ t क्या होगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लूँ तो u ऑफ t विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t इंटीग्रेशन डेल्टा ऑफ t dt। ठीक है, नाउ अगर मैं फाइंड करूँ t की वैल्यू मैं ले लूँ -2। अच्छा, यहाँ पे जो डेल्टा ऑफ टी है इसको अगर हम टाउ कर दें, टाउ, तो ये ठीक होगा और ये टी भी टाउ हो जाएगा, ताकि ये जो लिमिट है इससे ये जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू टी इससे डिफरेंट हो। बाकी कोई मसला नहीं। डेल्टा ऑफ टी, डेल्टा ऑफ टाउ, जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप फिर टाउ कर देंगे वेरिएबल को। अच्छा, u ऑफ माइनस टी से मतलब ये है कि आप t की वैल्यू -2 ले रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 आप इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन होता है। आप ये एरिया सम कर रहे हैं तो इस एरिया में क्या है, 0 है, 0 आएगा। अगर -1 तक कर दें तो भी 0 है। जब तक आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये 0 आता जाएगा। ये कब इंक्लूड होगा, जब आप 0 तक करें, u ऑफ 0 तक करेंगे तो बीच में ये डेल्टा ऑफ टी आ जाएगा। और डेल्टा ऑफ टी कहीं समेशन इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन एरिया है, तो ये तो हमने अभी देखा कि इसका एरिया हमेशा 1 आएगा। तो अगर आप u ऑफ 1 फाइंड करें तो ये फिर भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। अगर आप ये समेशन करें तो फिर भी इसमें ये आ रहा है, ये डेल्टा ऑफ टी आ रहा है, तो फिर भी 1 आएगा। इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि u ऑफ t विल बी इक्वल टू 1 फॉर t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप ये t की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर लेंगे तो ये 1 देगा। अगर आप ये t की वैल्यू 0 या 0 से कम लेंगे तो ये क्या आएगा, 0 देगा। और यही तो u ऑफ t की डिफिनीशन है। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ऑफ टी जो है वो इसका
यू ऑफ टी का यूनिट इम्पल्स का डेरिवेटिव है, और यू ऑफ टी क्या है, वो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, यूनिट इम्पल्स डेल्टा ऑफ टी वो यूनिट स्टेप का डेरिवेटिव है, और यूनिट स्टेप यूनिट इम्पल्स का इंटीग्रेशन है। अच्छा, ये एक चीज़ है, ये और ये सिग्नल, एक सिग्नल ये है 1 और एक सिग्नल ये है 1, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन ले तो ये 0 देगा, इसका इंटीग्रेशन ले तो ये 1 देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 0 पे t इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, इसकी वेट नहीं है, इसकी वेट नहीं है। तो वेट जब नहीं है तो एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। और ये जो सिग्नल है, ये अभी आपने देखा ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, ये इसका वेट है, लेकिन हम 0 टू डेल्टा इसकी वेट है, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं कि डेल्टा टेंड्स टू 0, इसलिए ये इसका वेट हम निग्लिजिबल वो कंसिडर कर रहे हैं, और इसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इसका एरिया क्या आएगा, 1 देगा, कि जितना आप इसका वेट कम करेंगे उतना इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, लेकिन ओवरऑल एरिया इसका क्या होगा, 1 होगा। तो इंटीग्रेशन से भी इसका 1 आएगा। ये यहाँ पे ये मैंने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अगर ये है 5 डेल्टा ऑफ टी, तो ये दिस इज़ नथिंग डिफरेंट बट जस्ट इसका एरिया 5 हो गया है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन लें तो इसका इससे रिजल्टेंट क्या आएगा, 5 आएगा। 5 इसका एरिया है, एम्पलीट्यूड नहीं है। अच्छा, ये एक दिस इज़ एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये एक सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ t, और कहा गया है कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दें। तो अगर आप देखें कि ये हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये u ऑफ t है, ठीक है। तो u ऑफ t यहाँ पे तो फिर 0 हो जाता है, यहाँ पे चेंज आ रहा है 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे। तो डेरिवेटिव इसका इस इंस्टेंट पे क्या है, एक इम्पल्स, 0 पे एक इम्पल्स है, ठीक है। तो इसी हिसाब को देखते हुए हम x ऑफ t की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आप देखें यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 पे ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 2 पे जा रहा है। तो ये एक इम्पल्स यहाँ पे आ जाएगा, उसका एरिया कितना होगा, 2। अच्छा, फिर डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होता है ना, स्लोप। तो स्लोप यहाँ से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहाँ ये चूँकि है तो डिसकंटिन्यूस, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि u ऑफ t को हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और उस डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल्टा ऑफ t। तो यहाँ पे एक इम्पल्स आ जाएगा, फिर यहाँ 2, यहाँ फिर ये 0 आएगा। स्लोप कांस्टेंट सिग्नल है तो कांस्टेंट सिग्नल का स्लोप या डेरिवेटिव 0 होता है। फिर चेंज कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, लेकिन कितना चेंज है, ये 2 से -1 हुआ है, नेगेटिव चेंज है। तो -1 -2 -3 का चेंज आया हुआ है, तो -3 का एक इम्पल्स 2 पे आ जाएगा। फिर ये 2 से 4 तक ये कांस्टेंट सिग्नल है, तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा। फिर ये क्या हुआ है, -1 से 1 पे गया है, मीन के कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया, पॉजिटिव चेंज ऑफ 2 एट t इज इक्वल टू 4। सो t इज इक्वल टू 4 पे एक इम्पल्स, और इसका एरिया कितना, 2। तो ये आपका इसकी इस सिग्नल का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को हम ये एक डॉट ऊपर लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल है, यही सिग्नल लिया है ये वाला, कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर दो। तो इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, हम इसके इंटीग्रेशन को x ऑफ t के इंटीग्रेशन को y ऑफ t का नाम दे रहे हैं। तो अगर मैं y ऑफ -1 फाइंड करूँ, y ऑफ -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1, तो
तो क्या होगा कि ये यहाँ तक मैं ये सारा कुछ सम कर रहा हूँ, तो इसमें तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये ज़ीरो, वाई ऑफ ज़ीरो यहाँ तक समेशन ले रहा हूँ, तो इसमें भी कोई सैंपल नहीं है, तो भी ज़ीरो आएगा। वाई ऑफ वन यहाँ तक, तो इसमें ये एक इम्पल्स अभी इंक्लूड हो गया, ठीक है, और उसका एरिया कितना है, 2, ठीक है। तो ये इसका क्या जाएगा, 2, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, डेल्टा टी नहीं होगा बल्कि ये 2 डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 होगा, शिफ्ट हुआ है ना, -1 पे है, ठीक है। तो ये डेल्टा ऑफ टी नहीं है बल्कि डेल्टा ऑफ टी माइनस 1 है। तो अगर आप देखें यहाँ पे इसका एरिया वो 2 आएगा, और ये अगर मैं ये समेशन यहाँ तक लूँ, मीन्स के t इज़ लेस देन 2, 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे जहाँ पे भी मैं समेशन लूँ ये रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, अगर ये फिर मैं 2 से 4 तक लूँ, y ऑफ t मैं फाइंड करूँ, और ये t जो है ये कहाँ से कहाँ तक हो, 2 से 4 तक हो, सॉरी ये इक्वल टू नहीं, लेस देन 4, ठीक है। तो क्या मतलब कि मैं किस एरिया को मेंशन कर रहा हूँ, इस एरिया को, कि यहाँ पे समेशन यहाँ कहीं पे भी हो तो उसमें कितने इम्पल्सेस आएंगे, 1 और 2, ये 2 इम्पल्सेस आएंगे, ठीक है। तो इसका ये 2 है और ये क्या है, -3, 2 -3 से क्या आएगा, -1। सो y ऑफ t विल बी इक्वल टू -1, लेकिन सिर्फ 2 के लिए नहीं बल्कि ये 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, इस पूरे ड्यूरेशन के लिए ये क्या आएगा, y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, -1। सिमिलरली अगर मैं ये t इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन 4 समेशन ये लूँ ऐसे इस ड्यूरेशन के लिए, तो इसमें कितने इम्पल्सेस आ रहे हैं, 1 2 3, इसकी वैल्यू 2 है, 2 -3 + 2, तो 2 -3 क्या होगा, -1, -1 + 2 1 आएगा। तो ये देखें आप, इसका 1 आएगा, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो y ऑफ t को हम ऐसे समराइज़ कर सकते हैं कि फॉर t इज़ लेस देन 1, ये इसकी वैल्यू क्या है, 0, t 1 इज़ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू t एंड t इज़ लेस देन 2, उसके लिए ये 2 है एम्पलीट्यूड, 2 और 4 के दरमियान इसका एम्पलीट्यूड -1 है, और t और उसकी t इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 4, उसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो ये सिग्नल आप बना सकते हैं, ये सिग्नल है जो कि वो वही वाला है जो जिसकी हमने पहले डिराइवेटिव लिया था, ठीक है। आप इस पे सोचें, ये मुश्किल नहीं है, आसान है, ओके। बुक में भी ये एग्जांपल सॉल्व हुआ है, आप इस पे देखें, ये मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा आप इसको गौर कर लें कि हो क्या रहा है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इम्पल्स। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इम्पल्स, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यूनिट इम्पल्स क्या चीज़ है। यूनिट इम्पल्स ये है, ठीक है, ये उसका कुछ ड्यूरेशन होगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, 1 और डेल्टा, इसका एरिया क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, ये एक एक्स-टी है, कोई एक सिग्नल है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं,
ये सिग्नल और ये सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएं तो होगा क्या कि ये सिग्नल तो हर जगह पे ज़ीरो है, सिर्फ ज़ीरो और डेल्टा के दरमियान इसकी कुछ वैल्यू है, तो वो ज़ीरो और डेल्टा तो इस इंस्टेंट तक आ जाएगा। बाकी तो ये इस एक्स ऑफ टी के साथ ये ज़ीरो मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक्स ऑफ टी को भी ज़ीरो कर देगा। वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? ज़ीरो और डेल्टा के दरमियान ये एक्स ऑफ टी की वैल्यू ले लेगा। तो एक्स ऑफ टी और डेल्टा ऑफ टी का रिजल्टेंट क्या आएगा? वो ये आएगा। इस पर थोड़ा आप सोचें, आसान है, मुश्किल नहीं है। एक्स ये डेल्टा ऑफ टी है, थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया, यूनिट इम्पल्स है, और ये एक्स ऑफ टी कोई एक सिग्नल है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी, ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा ऑफ टी तो हर जगह पे ज़ीरो है, सिर्फ ये इस ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये नॉन ज़ीरो है। तो जब ये एक्स ऑफ टी से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ऑफ टी को भी ज़ीरो कर देगा, सिर्फ ये ज़ीरो और डेल्टा के दरमियान वो एक्स ऑफ टी की वैल्यू ले लेगा और ये रिजल्टेंट सिग्नल दोनों से आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर ये डेल्टा की हम ले लें कि ये डेल्टा जो ड्यूरेशन है, जो वेट है, वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, जैसे ये, तो क्या आ जाएगा? एक इम्पल्स आ जाएगा, कहाँ पे? टी इक्वल टू ज़ीरो पे, और उसका एरिया कितना होगा? एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी। ये जो सबस्क्रिप्ट में डेल्टा था ये हमने ख़त्म कर लिया क्योंकि डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है। सो यहाँ पे मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ कि एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी, एक्स ऑफ टी डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो, तो क्या होगा? एक्स ऑफ ज़ीरो कि ये टी ऑफ ज़ीरो पे लोकेट हो जाएगा, तो यहाँ एक्स की ज़ीरो पे जो वाली वैल्यू होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी ये इसकी इक्वल होगा एक्स ऑफ ज़ीरो की। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ज़ीरो पे लोकेट हो रहा है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की ज़ीरो पे जो वाली वैल्यू होगी वो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है। ये सिमिलरली इफ एक्स ऑफ टी इज मल्टीप्लाइड विद डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नाट, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नाट क्या है? एक इम्पल्स है लेकिन शिफ्ट हुआ है टी नाट से। ठीक है। तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नाट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी नाट इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नाट। मीन के अगर ये एक्स ऑफ टी है फॉर एग्जांपल, और ये डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नाट है, ये सही है। तो जब ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होंगे, ये एक्स ऑफ टी और ये डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नाट, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? यहाँ तो हर जगह पे ज़ीरो है तो ये सिग्नल भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे टी नाट पे इसकी जो वैल्यू होगी एक्स ऑफ टी की, वो इसका एरिया बन जाएगा। इसलिए हमने लिखा हुआ है कि एक्स ऑफ टी नाट से मुराद क्या है कि एक्स की वैल्यू टी नाट पर वो डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नाट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। तो इसको हम सैम्पलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या मतलब कि एक्स ऑफ टी की सिर्फ वो वाली वैल्यू ले लेते हैं जिस लोकेशन पे सैम्पल इसके साथ इम्पल्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो इसको कहते हैं सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इम्पल्स। इस पे आप थोड़ा सोचें, बहुत आसान है, कंफ्यूजिंग लग रहा होता है लेकिन ये है आसान। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखें कि अगर एक्स ऑफ टी नाट डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नाट डी टी, इसका आप इंटीग्रेशन लें तो रिजल्टेंट क्या आएगा? एक्स ऑफ टी नाट इसका एरिया होगा। ठीक है। तो आई थिंक अच्छा
इसको समझने के लिए थोड़ा ये एक इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा ऑफ टी, इस सिग्नल के साथ मैं डेल्टा ऑफ टी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर सॉरी डेल्टा ऑफ टी माइनस वन, ये क्या चीज़ है, डेल्टा ऑफ टी माइनस वन, तो क्या होगा, ये दो सिग्नल वाई ऑफ टी और डेल्टा ऑफ टी माइनस वन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेल्टा ऑफ टी माइनस वन तो हर जगह पे ज़ीरो है, कहाँ पे नॉन ज़ीरो है, टी इज इक्वल टू वन पे, और यहाँ टी इज इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू क्या है, टू है। तो मैं लिख सकता हूँ कि वाई ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑफ टी माइनस वन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वाई ऑफ वन डेल्टा ऑफ टी माइनस वन इसकी इक्वल है ना। और y ऑफ वन से क्या मतलब है कि y की वैल्यू टी इज इक्वल टू वन, वो क्या है, वो टू है, तो टू डेल्टा ऑफ टी माइनस वन, ये मतलब है। तो अभी क्लियर हुआ। सिमिलरली ये x ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी, तो डेल्टा ऑफ टी तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे लोकेट कर रहा है, तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो एक इम्पल्स मल्टीप्लाई होगा एक्स ऑफ टी के साथ, तो एक्स ऑफ टी की कौन सी वैल्यू लेगा, जो एक्स की ज़ीरो पे वैल्यू है, बाकी तो हर जगह पे वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ये एक्स ऑफ ज़ीरो डेल्टा ऑफ टी। और ये अगर आप इसका इंटीग्रेशन लें, इससे रिजल्ट क्या आएगा, एक्स ऑफ ज़ीरो। आई थिंक आप समझ गए होंगे, थोड़ा इसमें सोचें, मुश्किल नहीं है।